good afternoon. So we can start class now, na? Hello, sound aa raha hai na? Hello. Yes, sir. Okay. So last time we have completed the exact differential equation for the solution for the exact differential equation integrating factor. Integrating factor we have to find first integrating factor and then multiply throughout the equation and then we can get in exact form, that is del m by del y equals to del n by del x. Okay, so first was by inspection. Integrating factor we can find by inspection. And second method what was mx plus ny when homogeneous equation if equals to, and if equals to 1 upon mx minus ny when these values are single term values, and mx minus ny in case when function is in terms of fx function of xy y dx plus function of xy x dy. They are the form type. This is first is what by inspection, second is this, third is this. Now fourth is what was the formula? Fourth, just we have write the formula at the last class. If first, second, third, fourth method, if because given equation is not exact, suppose mdx plus ndy is equals to 0, this is our equation, and we for testing whether it is exact or not, we find like this values, na, del m upon del y and del n by del x. If they are equal, then equation is exact. Okay, exact. Then we can use direct formula. But if not equal, then we can convert it to exact form by multiplying integrating factor. So first method, second method, third one. Now fourth method is what? If not equal, suppose these two values are not equal, then just subtract it. We can take difference of these two, and this, if after taking difference some value will be there, and just divide it by m. Divide by m, that is this is divided by m. If this value is single function of x, if this value is function of x, suppose, then we can take if what? E to the power integration of phi x dx. Clear? This is fourth method. मीन्स ये एग्जैक्ट नहीं है तो दोनों इक्वल नहीं होगा, दोनों का डिफरेंस लेना है. डिफरेंस को m से एक बार डिवाइड करके देख लो, एक बार n से डिवाइड करके देख लो. इफ m से डिवाइड किए, ओके, सो हियर इफ n से डिवाइड करेंगे और x का फंक्शन अगर हुआ तो दिस इज if. एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन टेक डिफरेंस, एक बार n से डिवाइड करके देखना है. अगर n से डिवाइड करने के बाद फंक्शन x का है, सो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर. और इसी डिफरेंस को अगर x का फंक्शन नहीं आ रहा है, ओनली फंक्शन ऑफ x, m से डिवाइड करके देखना है. और m से डिवाइड करके देखने के बाद अगर ये दिखा कि ये y का फंक्शन है, सो यू कैन टेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाइक दिस, e टू द पावर इंटीग्रेशन phi y dy, जो भी y का फंक्शन हो, m से डिवाइड किया y का फंक्शन, देन यू कैन टेक if. well this is technique. By this technique we can find if. Any of the method you can use, whatever be the format of equation के फॉर्मेट के बेस पे if फाइंड कर, और if फाइंड करके इनटू करने के बाद वो एग्जैक्ट हो जाता है. एग्जैक्ट हुआ डायरेक्ट सॉल्यूशन. इंटीग्रेशन mdx प्लस इंटीग्रेशन ndy, दैट्स इन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, वही फॉर्मूला है. ओके, सो ये एक मेथड है. ये दोनों इक्वल नहीं है, डिफरेंस किया, m से डिवाइड किया, अगर y का फंक्शन है तो ये if है. n से डिवाइड करने से अगर x का फंक्शन है तो यहाँ x वाला फंक्शन आएगा, if हो जाएगा. ओके, एंड this is method fourth. So by using this method we can find if. Okay, so एक क्वेश्चन सॉल्व करते इसके लिए. क्वेश्चन 7. So see, क्वेश्चन 7 सबको दिख रहा है ना? हेलो, स्क्रीन पे है ना क्वेश्चन 7. So इस क्वेश्चन पे शुरू से डिस्कस करें कि क्या a del m by del y equal to del n by del x है. अपने से सबको पता है del m by del y del n by del x क्या होता है. ओके,
solution. Given equation, given m equals to given इक्वेशन में से m लिख रहे हैं. अभी m dx प्लस m dy के फॉर्म में लिखा हुआ है. सो m इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा, x y स्क्वायर माइनस e टू द पावर 1 by x क्यूब, 1 by x क्यूब. दिस इज m and n equals to, n की वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई. ओके, इस इक्वेशन को एम डी एस प्लस एन डी वाई से अगर कंपेयर करेंगे तो एम इक्वल्स टू ये हो जाएगा, एन इक्वल्स टू हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या रहता है, एम डी एस प्लस एन डी वाई, डेल एम बाई डेल वाई, डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू टेस्ट करते हैं इक्वल है कि नहीं. अगर इक्वल होगा एग्जैक्ट होगा, डायरेक्टली सॉल्यूशन यू कैन राइट. बट अगर नहीं है तो फिर एक एक करके टेस्ट करना है. ये होमोजीनियस नहीं है, क्लियर है. ओके, एक्स क्यू है, दिस नॉट गिवन होमोजेनिटी. ओके, होमोजीनियस नहीं है. दूसरी बात, जो भी फॉर्मेट, जितने सारे फॉर्मेट था वो उतने उस फॉर्मेट में सेट नहीं हो रहा है. और आल्सो हियर del m by del y equals to, what will be the value of del m by del y, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2xy माइनस, इसकी वैल्यू क्या होना है, del m by del y equals to 2xy, y के रेस्पेक्ट में से 0, एंड del n by del x is equals to what, minus 2xy. So both are not equal, दोनों इक्वल नहीं है. ओके, implies del m by del y is not equals to del n by del x. Given equation is not exact. Exact नहीं है given equation. So 1 by 1 equals C. इंस्पेक्शन, डायरेक्ट इंस्पेक्शन मुश्किल है ना. फिर mx प्लस एन वाई की वैल्यू सिंगल आ जाए, दैट इज आल्सो डिफरेंट थिंग, बिकॉज ये बिल्कुल अलग टाइप का है, सिंगल फंक्शन नहीं मिलना है. ओके, सो mx प्लस एन वाई, mx माइनस एन वाई भी नहीं होगा, उस फॉर्मेट में भी नहीं है जो थर्ड नंबर पे फॉर्मेट था. सो हियर जस्ट वी कैन सी दैट इट्स डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस. अभी जो मेथड बताया था, वी सी दैट del m by del y माइनस del n by del x, इन दोनों का डिफरेंस क्या आना है. हेलो, टेल मी, कोई ना कोई बताओ, डिफरेंस क्या आएगा दोनों का. हेलो, 4xy. ये माइनस वो करना है, प्लस आना है, 4xy आना है, यही है क्या. del m by del y माइनस दिस. ओके, डिवाइडेड बाय बिकॉज दोनों का डिफरेंस लिया, और डिफरेंस लेने के बाद मेथड क्या पता है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और m से डिवाइड करे, n से डिवाइड करे, x का फंक्शन और y का फंक्शन. सो हियर इससे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये दो टर्म का है, वो सिंगल टर्म वाला है. सो n से डिवाइड कर सकते इसको, दिस इज डिवाइडेड बाई, वी सी दैट दिस बाई दिस, बिकॉज दिख रहा है ना, n से डिवाइड करेंगे कुछ तो वैल्यू आएगा, y कैंसिल हो जाएगा. सो यू कैन राइट लाइक दिस, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 4, या तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो भी लिख सकते हैं इसमें, 2xy माइनस 2xy अपॉन n की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई. सो दिस इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आना है, माइनस 4y x, minus 4 by x. So this is function of x only.
पहले इन दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं है, और यहाँ पर जो वैल्यू देखने से क्लियर हो रहा है कि माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सिंगल वैल्यू आना है। सिंगल वैल्यू आया और उसको डिवाइड कर दिए n से, m से नहीं हो सकता, n से डिवाइड किया तो सिंगल फंक्शन है, विच इज फंक्शन ऑफ x only. Therefore, we can take IF. IF क्या हो जाएगा? IF, हेलो, अभी मेथड बताया था, IF क्या लिखना है इसके लिए? IF इक्वल्स टू, अगर इसकी वैल्यू x का फंक्शन है ओनली, IF इक्वल्स टू e टू द पावर फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन, ये जो फंक्शन बनाइए इसका इंटीग्रेशन ऑफ -4/x dx इक्वल्स टू ओके, क्या होना है? e टू द पावर, हेलो, e टू द पावर -4 log x. -4 log of x. So it can be written as e to the power log of 1/x to the power 4. Is it right or not? x का पावर -4 इसमें -4 में जाएगा तो -4 नीचे आ जाएगा, so e to the power log of something, that is something. So e to, इसकी वैल्यू क्या होना है? हेलो, 1/1 x और 4. X to the power 4. दिस इज द IF. ये IF आ गया. अब ये IF हो गया, अब क्या करना है? IF से इंटू कर देना है दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ, और वो एग्जैक्ट हो जाएगा. यू कैन सी वेरी इजीली. नाउ मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाय IF equals to 1/x power 4. We get multiply given equation both sides by IF. We get क्या हो जाएगा? फर्स्ट गिवन इक्वेशन सी xy स्क्वायर माइनस e टू द पावर दिस xy स्क्वायर मींस xy स्क्वायर डिवाइड 1/x टू द पावर 4 है ना, इसी से मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर 4 से डिवाइड होगा, दैट मींस xy स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर अपॉन x क्यूब फर्स्ट टर्म माइनस x पावर 4 से डिवाइड होना है, सो माइनस 1/x पावर 4 e टू द पावर 1/x क्यूब. सेकंड पार्ट था ये. ओके, दिस इनटू dx प्लस माइनस को इंक्लूड कर लेते हैं उसमें, माइनस के साथ है ना, सो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, so y by x square minus y by x square, this dy equals to 0. This is the converted equation. It is exact. You can see which is exact. क्यों ये exact equation है कि नहीं? ये हो जाएगा न्यू m और ये हो जाएगा न्यू n. So, इसको डिफरेंशिएट करना है, डेल एम बाई डेल वाई. डेल एम बाई डेल वाई अगर निकालेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर 2y अपॉन एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियली, 2y अपॉन एक्स क्यूब, ये तो 0 हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू y है. यहाँ पर क्या वैल्यू मिलना है? यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? x टू द पावर -2, सो -2 सामने आएगा, माइनस माइनस प्लस 2, सो 2x प्लस 2 y अपन -2 -1 x टू द पावर -3 तो नीचे आएगा, तो 2y by x क्यूब, 2y by x क्यूब, सो बोथ आर इक्वल, सो दिस इज एग्जैक्ट. वो IF से इंटू करने से बाद एग्जैक्ट होता है, सो एग्जैक्ट हुआ, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज गिवन बाय. सॉल्यूशन क्या होगा? हेलो, याद है सॉल्यूशन का मेथड क्या होता है? इंटीग्रेशन m dx and dy. So
its solution is given by integration y constant m dx plus integration terms of n not containing x dy equals to c. So we get integration of y constant m means what? This y square upon x cube minus e to the power 1 by x cube upon x power 4. This is m dx plus n, ये जो टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यहाँ पर क्या आएगा? पूरे पे सिंगल टर्म कंटेनिंग x, सो दिस इज 0 dy इक्वल्स टू c. अब इंटीग्रेशन करना है, सॉल्यूशन आ जाना है. ओके, सो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, बताओ क्या होगा. टर्म बाय टर्म. हेलो, क्या होना है? फर्स्ट टर्म टेल मी. जब ये यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में, ये क्या वैल्यू होना है? यहाँ पर y कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, सो x क्यूब x टू द पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन हुआ x का, और साथ में क्या रहेगा? y स्क्वायर एज इट इज कांस्टेंट, x पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1. दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होना है? हेलो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहां पर. e to the power x to the power -3 and x power -4 dx. So -3 x power -4 dx plus 1/3 integration equals to c. हेलो, सब लोग देख रहे हो ना इस इंटीग्रेशन को कैसे करना है? x का पावर -3 x का पावर -4 ऊपर गया तो सो x पावर -3 को अगर t लिया जाए, इसको अगर t ले, क्या मिलेगा? -3 x टू द पावर -3 -1 -3 x टू द पावर -4 dx इक्वल्स टू dt. ये बन जाएगा dt, ये dt बन जाएगा e टू द पावर t dt, और 1/3 देखो इसको सेट किया, तो 3 कैंसिल, माइनस यहाँ आ गया, ये जो वैल्यू लिखा हुआ वही वैल्यू लिखा हुआ है. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस. नाउ मैं अभी डायरेक्ट लिखूंगा, क्या होगा बताओ? यहाँ पर इसका आंसर क्या होना है? हेलो, इसको डायरेक्ट ही करना है सब वैल्यू. यहाँ पर क्या आना है? -2 y स्क्वायर अपॉन, नो -2 नहीं, -y स्क्वायर, दिस इज -2 ना, सो -y स्क्वायर अपॉन 2 x पावर 2, यही होगा ना वैल्यू? x का पावर -2 प्लस 2 होके नीचे आया, a 2 बन गया -2, तो माइनस ऊपर लिख दिया y स्क्वायर. एंड हियर, हेलो, सब लोग देख रहे हो सीरियसली? हेलो, बताओ इसकी वैल्यू. मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ बार बार. अभी तो सेट करके लिखा हूं यहाँ पर. ये क्या, किसको क्या t लेना है? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में. x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है ना, y तो है ही नहीं. तो यहाँ पर किसको क्या ले लिया जाए? t ले लेना. इस x टू द पावर -3 को t ले सकते हैं ना. ये t लोगे तो इसको dt बनाएंगे, ये dt बन जाएगा.
तो e टू द पावर t dt, e टू द पावर t dt का क्या इंटीग्रेशन होता है? x क्यूब, यहाँ ये लिख देना है राइट साइड में, पुट x पावर माइनस 3 इक्वल्स टू t implies माइनस 3 x पावर माइनस 4 dx इक्वल्स टू dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? dt। इस इंटीग्रेशन को बताओ क्या होता है? मैं डायरेक्ट लिखूंगा बिकॉज ये स्टेज में डायरेक्ट ही लिखना है। बाई पार्ट से होगा ना इंटीग्रेशन। हेलो, ये इंटीग्रेशन किससे होगा? बाई पार्ट्स ना। फर्स्ट फंक्शन t, सेकंड फंक्शन e टू द पावर t। यस सर। तो बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा? डायरेक्ट याद रखना है, ऐसे ऐसी चीज याद हो जाता है। इसको ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो t e टू द पावर t पहले बचेगा माइनस इंटीग्रेशन t का 1 e टू द पावर t, फिर उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t, तो e टू द पावर t कॉमन t माइनस 1, तो इसकी जो वैल्यू होता है e टू द पावर t t माइनस 1, ये होता है। इसका यूज करना है, ये होता है इंटीग्रेशन। ये अगर करेंगे तो क्या होगा? ये तो t बन गया, ये पूरा dt बन गया, t e टू द पावर t हो गया, सो वो मिलना है e टू द पावर t t माइनस 1, t की जगह पे क्या लिखना है? x टू द पावर माइनस 3, सो ये इसका वैल्यू क्या होना है? प्लस 1/3 e to the power t means x to the power minus 3 and t minus 1 means x to the power minus 3 minus 1 equals to c। बस ये है सॉल्यूशन। ऐसे करके लिख देना है, बस हो गया। अब इसको फाइनल आंसर लिखने के लिए अभी क्या करना है? इजीली सॉल्व हो जाएगा ना। x पावर माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू c, सो यू कैन राइट इट लाइक, क्या करें अभी बताओ? शॉर्टकट में देखो, किसी भी फॉर्म में सेट करके रख सकते हैं। यहां पर क्या किया? 2 टू द पावर 1/x क्यूब, ओके, और इसको 1/x क्यूब, किसी भी फॉर्म में सेटिंग कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन क्या बना? अरे यहां पर t नहीं है ना, t नहीं है यहां पर, t कहां है? अरे देखो रॉन्ग हो गया। सब लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं? टी एक्स्ट्रा ले लिया था, सॉरी, टी एक्स्ट्रा ले लिया था। हेलो, यस सर। भाई कोई ना कोई एक्टिव रहो हमेशा, है ना। यहाँ पर ये तो dt बन रहा था ना, e टू द पावर t dt में t भी सोच दिया था, t नहीं है, t नहीं है। सो क्या होगा? e टू द पावर t dt, वो तो e टू द पावर t का t, e टू द पावर t होता है, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। अब इसको छोटा करके लिख देना है, सिंप्लीफाई करिए, ये सॉल्यूशन हो गया बस। तो मेन स्टेज क्या था? जहां से स्टार्ट किया वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, फिर डेल एम बाई डेल वाई, डेल एन बाई डेल एस निकाला, फिर एग्जैक्ट आई एफ निकाला, एग्जैक्ट बनाया, ये सॉल्यूशन यहाँ तक लिख दिया, मतलब क्वेश्चन 99% सॉल्व। ये आगे का जो इंटीग्रेशन सिंपल रहता है, और सिंपल इंटीग्रेशन को डायरेक्ट यू कैन डू ऑन राइट साइड एंड यू कैन राइट आंसर हियर। ओके, तो इसको क्या 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 लिखा जाए? थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 इधर जाएगा तो 6c हो जाएगा, उसको न्यू c लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर को क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? -3y² प्लस 2 e टू द पावर x माइनस 3 इक्वल्स टू 6c इक्वल्स टू c1। सो दिस इज सॉल्यूशन। जैसे क्या होता है, कांस्टेंट जब भी लिखते हैं ना, यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ प्लस लिख दो, यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ पर -6c लिख दो, और इसको c1 लिख दो। समझ में आ रहा है क्या होता है? जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू c है, पहले से c बन के आया हुआ है, अब c के साथ 2 का इंटू हो, 2 का डिवाइड हो, कुछ भी हो, प्लस हो, माइनस हो, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो, न्यू कांस्टेंट यू कैन पुट। जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं ना, तो log c लेते हैं, कभी c1 लेते हैं, कभी log c ले लेते हैं, वो एडजस्टमेंट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। सो यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं? ये कुछ और है, इसमें कुछ छूट गया क्या? हेलो, हाँ गुड गुड। यहाँ एक्स स्क्वायर नीचे आएगा ना, इसको यही सॉल्यूशन है, यू कैन सपोज इट, बिकॉज इसको सिंप्लीफाई करने का ना अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से सेट करके रख देते हैं। यहाँ पर ये क्या हुआ, वो एलसीएम नीचे से हटाने जा रहे थे, अगर एक्स स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ भी इंटू हो जाएगा, यहाँ भी इंटू हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ भी आ जाएगा, तो इस सिंगल जगह पे रहने देते हैं। तो 3y² माइनस 2 इधर गया, इधर माइनस, यहाँ माइनस से इंटू कर दिया था, तो -6c हुआ, तो -6c को हमने c1 लिख दिया। तो दिस इज सॉल्यूशन।
ओके, वो किसी भी टाइप का सेट कर सकते हैं, यही इक्वेशन है, सॉल्यूशन तो मेन ये है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है इक्वेशन। ओके, तो दिस इज द आंसर। सो यहाँ क्या था, मेन था, एग्जैक्ट नहीं था तो उसको एग्जैक्ट आईएफ ढूंढा, एग्जैक्ट बनाया, फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाला। ओके, तो n से डिवाइड किया था, कभी कभी m से डिवाइड करने से भी हो जाता है। m से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, अगर del m by del y माइनस del n by del x अपन m से डिवाइड करने से if क्या होता है? अगर सीरियसली पढ़ रहे हो तो याद है वो, बताओ। हेलो, to the power integral of function of y. e to the power इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ y, जो भी सिंपल फंक्शन आया था उसी को लिख देना है। बिकॉज एग्जैक्ट नहीं था, del m by del y del n by del x निकल गया था, दोनों को डिफरेंस निकाला, वो देख के समझ में आ जाता है कि m से डिवाइड करेगी n से डिवाइड करे, और x का फंक्शन तो e to the power इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x, और y का फंक्शन e to the power इंटीग्रेशन ऑफ y। ओके, ये एक टेक्निक है, इससे फाइंड कर सकते हैं। ओल्ड मेथड सर काम नहीं आ रहा है तो ये मेथड हो जाएगा। नाउ लास्ट मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें क्या होता है, ये बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। ओके, सो लास्ट मेथड इज दिस, सी ध्यान देना है, इसमें लिखते कैसे हैं इक्वेशन को, y dx, बस समझना मेन है इसमें। अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। y dx, बिकॉज ये जो इक्वेशन है किसी पुराने मेथड में काम से हो ही नहीं रहा है, तो इस मेथड को यूज किए, y dx प्लस x dy, y dx प्लस x dy, बिकॉज इस टाइप से लिखने से याद रहता है, y dx प्लस x dy, y dx प्लस x dy, इस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आ जाए, साथ में ना यहां पर y dx प्लस x dy, y dx प्लस x dy। अब इस y के साथ एक कांस्टेंट ले लेते हैं m, यहां ले लेते हैं n, यहां ले लेते हैं p, यहां ले लेते हैं q, कांस्टेंट, और फिर ये कॉम्बिनेशन भी है, ये कॉम्बिनेशन भी है, और इसमें इंटू कर दे रहे हैं x एंड y का, x का पावर c, y का पावर d, यहां पर x का पावर a, y का पावर b, बहुत सारे वैल्यू आ गया, बिकॉज एग्जैक्टनेस की बात आ रही है। देखो dx है, y dy है, dx है, dy है, पहला कॉम्बिनेशन, ध्यान किस पे देना है, y dx प्लस x dy, y dx प्लस x dy, इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन को लिख सकते हैं, तो इसके सामने कांस्टेंट m, यहाँ n, यहाँ पर p, यहाँ पर q, कांस्टेंट, वैल्यू निकालना है इसका। ओके, वैल्यू तो इक्वेशन से मिलेगा, इक्वेशन से डायरेक्ट सब वैल्यू आ जाएगा, बट if क्या होगा ये देखना है। इफ वी कैन राइट द गिवन इक्वेशन इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, ये सामने x पावर a, y पावर b, यहाँ x पावर c, y पावर d, बट कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ ओनली x पावर 2 दिया है, तो y पावर नहीं है तो 0, b की जगह 0 ले लेंगे, यहाँ पर x y कुछ भी नहीं है तो x c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0, इक्वल सपोज, बट यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्लियर है? तो इस टाइप के होने, इसके सामने का कोफिशिएंट होना चाहिए, इसके सामने का कोफिशिएंट, ये क्लियर है? ये ऐसा नहीं कि m की वैल्यू 0 ले दे, ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज ये जो है ये dx dx dy dy लिखा हुआ है। इफ गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, दिस इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में, फॉर्म समझ में आया? हेलो, Yes sir. ये देखो फॉर्म, ये वाला देखना है मेन, और ये वाला देखना है, बिकॉज कोई मेथड काम नहीं आया, फिर ये मेथड यूज करेंगे, और देखना समझ में आया था, इंटू इंटू रहता है ज्यादा x y का, बट यहाँ पर CD 0 हो सकता है, यहाँ पर AB 0 हो सकता है, यहाँ MN और वहाँ PQ 0 नहीं होना है, so these are the constant A B C D MN PQ। अब हम सपोज कर रहे, if given equation can be written in this form, then we can suppose IF equals to, सपोज कर लेते हैं IF equals to, let IF equals to x power h y power k, ये हम सपोज कर लेते हैं कि दिस विद IF, लेट IF। अब बताओ IF अगर है तो इससे अगर इस इक्वेशन को इनटू करेंगे तो एग्जैक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट होने के बाद फिर वो कंडीशन यूज कर लेंगे, एग्जैक्ट करने के बाद फिर इसको मिक्स कर देंगे, मिक्स करने से फिर वही इक्वेशन उसी फॉर्म में लिखेंगे, dx प्लस dy इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमने सपोज किया कि इसका IF ही है। इफ इट इज IF देन इसमें इनटू करने के बाद दोनों तरफ जो इक्वेशन आएगा उसको फिर इसी फॉर्म में लिखेंगे, समथिंग इनटू dx प्लस समथिंग इनटू dy। ये जो न्यू चीज आएगा,
बिकॉज एग्जैक्ट है, सो del n by del y del n by del x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो जाएगा। और उसको इक्वल करने से जो इक्वेशन मिलता है वो ध्यान देना है, a प्लस h प्लस 1 बाई m इक्वल्स टू b प्लस k प्लस 1 बाई n एंड ये c प्लस h प्लस 1 बाई p d प्लस k प्लस 1 बाई q, ये हमको मिल जाएगा। ये दिस जनरल मेथड, जनरली इफ वी डू इस इक्वेशन के साथ अगर हम इसको इनटू करें और उसको एग्जैक्ट सपोज कर लें तो सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, दोनों मिलता है। इसको फॉर्मूला बना के रखिए, बट इनटू करके del m by del y इक्वल टू del n by del x लेके भी सॉल्व करके भी निकल जाएगा वैल्यू किसका, h एंड k का, बिकॉज बाकी सब वैल्यू तो पता है, a b m n c d p q वो तो इक्वेशन में दिया हुआ है, केवल h की वैल्यू निकालना है और k की वैल्यू निकालना है। क्लियर है? सो जब इससे इनटू करते हैं ना और एग्जैक्ट है सपोज कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो ये दोनों इक्वेशन मिलता है इन जनरल। सो if this then h and k can be find by this, ये है मेथड। समझ में आया? IF निकालना मेन था, जब IF आएगा IF की वैल्यू मिल जाएगा। ये मिलने का मीनिंग क्या है? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ h एंड k, बिकॉज x टू द पावर h y टू द पावर k, इसको हमने IF सपोज किया। तो IF सपोज किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिख के गिवन इक्वेशन को a b c d m n p q की वैल्यू हमको रिटर्न करना है, क्योंकि इक्वेशन से मिलेगा a b c d m n p q। जब ये सब वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पर a b और m n का वैल्यू रखना है, तो h एंड k में इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर भी सी डी पी क्यू की वैल्यू रखना है तो एच एंड के में इक्वेशन मिलेगा। सो सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, क्या मिल जाएगा? एच एंड के, सो आई एफ मिल जाएगा। यहाँ एच की वैल्यू, यहाँ के की वैल्यू। क्लियर है? सो आई एफ मिल गया, आई एफ मिल गया तो फिर क्या करना है, जो इक्वेशन दिया है उसको इंटू करो, उसको इंटू करने के बाद एग्जैक्ट हो गया वो, फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन। मेथड क्लियर हुआ? हेलो? यस सर। ये जनरल मेथड है, एकदम लास्ट वाला मेथड, इसके आगे नहीं है, उसके आगे भी दूसरा चीज पढ़ेंगे। एकदम इजी चीज है। लीनियर इक्वेशन पहले पढ़ा हुआ है, बर्नौली इक्वेशन क्या है, वही रिड्यूस हो जाता है लीनियर इक्वेशन, यही तो पढ़ना है। ओके, आगे का सब स्टेप इजी है, बस यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ मोर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिकॉज देखो अभी टेस्ट होगा ना, तो हम टेस्ट जो लेंगे ना, इस ये यूनिट सेकंड यूनिट पूरा ले लेंगे, सेकंड यूनिट खत्म। मान लो आज अगर अभी पढ़ेंगे 1-1.5 घंटा, 1-1.25 घंटा भी पढ़ेंगे ना, अभी खत्म हो जाएगा सेकंड यूनिट, ज़्यादा उसमें स्टेप नहीं है। बस ये जरूरत है कि आप प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। सो ओके, इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यू, बिकॉज कैलकुलेशन सिंपल। पता है कि नहीं, एच के में रिलेशन मिला और एच और के में एक रिलेशन है, एच और के में एक रिलेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करके एच एंड के की वैल्यू आ जाएगा ना। अब सपोज करो 2h प्लस k इक्वल्स टू दिस, 3h माइनस 5k इक्वल्स टू 6, 2। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? हेलो, यू कैन सॉल्व इट ना। यस सर। ये तो सिंपल चीज है, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर देंगे, h k आ जाएगा। h k आने के लिए यही से वही मिलने वाला है, फॉर्मूला है ये, बस ये याद रखना है, ये फॉर्मूला है। क्योंकि a b m n की वैल्यू तो इक्वेशन से मिलेगा, फट से लिख देंगे 1 2 0 5 ये जो भी आएगा। यहाँ लिखेंगे तो h के में एक इक्वेशन आएगा, वहां भी लिखेंगे तो फिर एक इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? h एंड k। तो i f मिल गया, i f का टारगेट था, i f मिला और इनटू किया तो एग्जैक्ट हो गया, डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, सो टेक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मींस 7 and 8 ना, क्वेश्चन 8, दिस इक्वेशन, बिकॉज सी दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय दिस मेथड, बिकॉज अदरवाइज दूसरा मेथड ट्राई करोगे बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं हो पाएगा सॉल्व। हो रहा है क्या? डेल m बाई, इसमें जो भी m लिखा है, जो भी n है, सो mn इसको, बिकॉज इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ mdx प्लस ndy, m की वैल्यू दिया है, n की वैल्यू दिया है, और डेल m बाई डेल y डेल n बाई डेल x एग्जैक्ट दिख रहा है क्या? हेलो, एग्जैक्ट दिख रहा है? तुम लोग देखो, देख के भी जस्ट करना है, बार बार सॉल्व नहीं करना है। हेलो,
अगर m है n है तो डेल m बाई डेल y डेल n बाई डेल x सेम दिख रहा है क्या? हेलो, है एग्जैक्ट भाई। डेल m बाई डेल y की वैल्यू क्या होगा और डेल n बाई डेल y डेल x की वैल्यू क्या होगा? इक्वल है कि नहीं? देखो लिखना नहीं है हमको, कुछ करना नहीं है। हेलो, नमस्कार। देखो जनरली बढ़िया सर। रोज 22-23 लोग ज्वाइन करते हैं, बट कोई सब ज्वाइन करके भूल जाओगे, वो मीनिंग नहीं है पढ़ने का। मैं भी उस टाइप का पढ़ाई कराना होता ना तो मैं भी क्या करते, वो वीडियो बना के भेज देता या तो बस वैसे ही रफ पढ़ा देता, फटाफट हो जाता। बिल्कुल जो क्लास में पढ़ाना होता है वही वैसे ही कर रहा हूँ। सो यू हैव टू टेक सीरियस इट, सीरियसली देखो, सब समझ में आएगा ना। सो यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इक्वेशन है अभी समझ रहे हैं, डेल m बाई डेल y डेल n बाई डेल x, वो देख के समझ लो। क्या इक्वल तो नहीं है, वो तो दिख ही रहा है ना। होगा क्या कभी? और पहले वाले को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दूसरे को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इक्वल दिखेगा ही नहीं, कि भी दिख ही नहीं रहा है। सो तो है नहीं। फिर देखो होमोजेनियस भी नहीं है, होमोजेनियस भी नहीं है, और दोनों का डिफरेंस भी करोगे वो भी नहीं आएगा। सो यहाँ पर xy ज्यादातर दिया हुआ है। सो इस फॉर्मेट में अभी जो बोला हूँ उस फॉर्मेट में इसको सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y, 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y dx प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब y, 3x माइनस एक्स क्यूब y, 3x माइनस एक्स क्यूब y dy इक्वल्स टू 0। सो दिस इज गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में पुराना कोई मेथड लग नहीं रहा है ना, ट्राई करोगे तो इस इक्वेशन को यहां पर x y x dy y dx, यहां से एक y लेकर dx, यहां से एक x लेकर dy x dy दिख रहा है। तो y dx प्लस x dy के फॉर्मेट में दो बार सेट कर लेते हैं। एक बार इसके साथ इसको रखें, और चूंकि यहाँ दो कंपोनेंट है, यहाँ भी दो कंपोनेंट है, तो इसके साथ इसको भी रखें। ठीक है। सो 2x स्क्वायर y स्क्वायर, 2x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू dx, ये इंटू दिस, फिर ये वाला इंटू ये, माइनस एक्स क्यूब y dy, फर्स्ट टर्म और यहाँ का सेकेंड टर्म, प्लस यहाँ y dx ये वाला टर्म, और यहाँ का 3x dy प्लस 3x dy, ये रखते हैं इक्वल्स टू 0 करते हैं। ओके, अब देखो y ds प्लस x dy दो बार यूज करना है। यहां से कुछ कॉमन ले लेते हैं, यहां पर x dy बचना चाहिए, मतलब x स्क्वायर y, यहां से x स्क्वायर y, सो x स्क्वायर y कॉमन, फिर क्या बचा यहां पर x स्क्वायर y कॉमन, तो 2y dx माइनस, ऐसा लिख देता हूं, प्लस ऑफ माइनस 1 इंटू यहां x स्क्वायर y आउट, तो x dy प्लस y dx प्लस 3x dy इक्वल्स टू 0। यहां कुछ भी नहीं है, तो पावर 0 y पावर 0। क्लियर? सो इसको अभी वो वाला फॉर्मेट है, ऑन कंपेयरिंग इट विथ, वही जो फॉर्मेट था अभी याद है, x पावर a y पावर b, फिर m y dx प्लस n x dy प्लस x पावर c y पावर d, p y dx प्लस q x dy इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इससे कंपेयर कर रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग इट विथ दिस वी गेट, क्या होगा a की वैल्यू, a इक्वल्स टू, टेल मी सब वैल्यू बताओ, a b c d m n p, 2, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1, 1, c इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0। a b c d की जगह 0 हो सकता है, बट m n और p q की जगह 0 नहीं होना है। सो m की वैल्यू 2, m इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू क्या है -1,
and p equals to what? p की वैल्यू क्या है? 1. सो ये वैल्यू तो इक्वेशन से मिलेगा, पूरा मिल गया है ना, ये लिख लिया. नाउ टेक लेट if equals to x to the power h, y to the power k. देन फिर क्या लिखना पड़ेगा? देन we can find h and k using क्या लिखना है? a plus h plus 1 by m equals to b plus k plus 1 by n and c plus h plus 1 by p equals to b plus h k plus 1 by q. अब रफ में वर्क करो और वैल्यू लिख दो डायरेक्ट, या वन टाइम्स रफ में क्या है यही से इक्वेशन बना लेते हैं. सो यहाँ पर क्या करना है? अभी ये जो भी ए बी सी डी एम एन पी क्यू है इसकी वैल्यू यहाँ रख दो और दो इक्वेशन आएगा एच एंड के में. एच एंड के में इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करना है. ठीक है. सो यहाँ पर एच के की जरूरत पड़ेगी ना, इक्वेशन ही गिवन है. सो इसको हटाते हैं यहाँ पर. क्या होना है? 2 plus h plus 1, 2 plus 1 3 plus h by 2, 3 plus h by 2 equals to 3, because 2 है 2 and 3, 3 plus h by 2. यहाँ b plus k plus 1, b 1 और 2, 2 plus k by minus 1, 2 plus k by minus 1 and second c डी 0 है तो h plus 1, तो h plus 1 upon p equals to 1 equals to d equals to 0, k plus 1 upon q 3. यहाँ सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को एंड p q की वैल्यू निकालना है, सॉरी h k की वैल्यू. ओके. सो h k की वैल्यू क्या आ रहा है? हेलो, कोई एक जन वैल्यू निकाल के एक वैल्यू बता दो h की वैल्यू, फिर सॉल्व करते हैं, फिर डायरेक्ट लिख देते हैं. यही होगा ना, पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, और h की वैल्यू क्या होना है? h इक्वल्स टू, एक k को एलिमिनेट करो तो h की वैल्यू मिलेगा, h को एलिमिनेट करो तो k की वैल्यू मिलेगा. हेलो, इधर ध्यान दो, ये इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? हेलो, यस सर. तो स्पीडली करना है. अब मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं क्या आना है. ठीक है. h की वैल्यू है -11/7. देखो मेथड समझने के लिए है, प्रैक्टिस करोगे तब होगा, है ना. ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं. -19/7, -19/7 राइट है कि नहीं? एक वैल्यू सेटिस्फेक्शन करा के देखो. क्या करना पड़ेगा? h के जगह पे -11/7 है, k के जगह पे -19/7 है, इक्वल्स टू -7. सेटिस्फाई हो रहा है? h और k को अगर यहां रखोगे तो -7 आ रहा है क्या? -38/7 और इधर कितना आ रहा है? -11/7.
7, ये प्लस हो रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 49 आ रहा है, -49, -7, ओके राइट। ओके, इस टाइप से है ये। तो h k की वैल्यू जो है ना, क्या आ गया, h इक्वल टू दिस, k इक्वल टू दिस। सॉल्व करना है रफ में, फटाफट करके ये यार निकाल लेना है इसको, ठीक है। सो अभी क्या हो गया, सो if इज, सो if इज इक्वल्स टू क्या था, x पावर h, x पावर -11/7 इंटू y पावर -19/7। ओके, ये बहुत ही खतरनाक वैल्यू आ गया, क्यों, है ना, इससे इंटीग्रेशन में टाइम लगना है। ओके, बट यू कैन राइट डायरेक्ट, जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्ट होना है। सो आई हैव इक्वल्स टू दिस, ऑन multiplying 1, सपोज ये गिवन इक्वेशन था ना, ये 1 है, 1 बाई if we get, यहां पर इससे इसमें मल्टीप्लाई होना है इस जगह पे। सो क्या होना है, इतना तो बता दो, चलो सॉल्व करते हैं। 2x पावर 2 है और x पावर इतना है, मींस 2 - 11/7। क्या होना है, 2 माइनस, देखो 2, अब इसका प्लस होना है, तो 2 - 11/7, 14 - 13, 3/7 ना, Yes. 3/7, and y पावर 2 - 19/7, 2 - 19/7, -5/7। ओके, लिख दिया, खत्म। और अगले वाले में y का बस x का पावर 11/7, x पावर -11/7 एंड y पावर 1 - 19/7, 1 - 19/7 होगा ना। सो क्या होना है, 7 - 19 12 ना, -12/7, बस लिखना है ऐसे, हो गया खत्म, dx हो गया। और इस साइड में भी लिखना है, dy आएगा इक्वल्स टू 0। इसमें क्या है, कैलकुलेशन रफ में करना है, और जैसे ये इक्वेशन बना, देयरफॉर सॉल्यूशन इज दिस, और सॉल्यूशन में भी इंटीग्रेशन भी रफ में करो और डायरेक्ट लिख दो। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आना है, 3x, सो 3x का पावर 3 माइनस x का पावर 1 माइनस x का पावर 1 माइनस व्हाट, 11/7, मींस 7 - 11 मींस क्या हो रहा है, -4/7, x पावर -4/7 एंड y पावर जो है -19/7, माइनस x पावर 3 माइनस x पावर 3 माइनस 11/7। सो क्या होगा, 21 माइनस 11 10/7, सो x पावर 10/7 एंड y पावर क्या होना है, 1 माइनस -12/7। ओके, -12/7 ही होगा ना, 1 माइनस दिस, ये आ गया, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इट इज एग्जैक्ट। शो करने की जरूरत नहीं है, होना ही है एग्जैक्ट, यू कैन सी दैट इट। ये m है, न्यू m है, ये न्यू m है, तो del m by del y, del n by del x इक्वल आएगा, which is exact, just write it, which is exact equation. So its solution is given by, क्या हो रहा है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, y कांस्टेंट, m की वैल्यू लिख दो, जो लिखा है बस सीधा लिख देना है आगे, x पावर 3/7, y पावर -5/7 प्लस x पावर -11/7, y पावर -12/7 dx प्लस टर्म्स ऑफ, यू नो क्या होना है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, क्या होना है, हेलो क्या लिखना है यहां पर, ये तो m हो गया, वहां दोनों में x है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो 0 मिला ना, सो 0 हो गया बस। और
सिंगल लाइन बचा है, बता दो सोल्यूशन क्या होना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। x पावर 3/7 plus 1/3/7 plus 1, 3/7 plus 1 means 10/7, 10/7, 10/7, ये 2 से 10 कैंसिल होगा, 5, 7, 7/5, तो क्या हो गया 7/5 x to the power, क्या होना है x to the power, 7/5 कांस्टेंट हो गया, x to the power क्या होना है 10/7, क्लियर, y पावर -5/7 ये कांस्टेंट था, प्लस नाउ विद रेस्पेक्ट टू y कांस्टेंट है x के रेस्पेक्ट में, सो यहां क्या होना है -11/7 प्लस 1 ना, सो 7 - 11 -4/7 x का पावर हो, और इसका रिवर्स में आएगा 7/4, सो प्लस एंड माइनस साइन भी आना है, इसमें माइनस साइन भी आना है, सो -7/4 x पावर -4/7 y पावर जो भी है -12/7 is equals to c, so this is solution, क्लियर है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये IF ही आ गया, बिल्कुल माइनस प्लस वाला आया ना, तो उसी के लिए माइनस प्लस करना पड़ा, बट दूसरा वैल्यू भी आ सकता है, सिंपल इंटीजर सब भी आ सकता है, सो दिस इज द लास्ट टेक्निक फॉर फाइंडिंग IF फाइंड करना है और इनटू करना है, इनटू करने के बाद एग्जैक्ट हो जाता है, एग्जैक्ट हो जाता है तो फिर यही फॉर्मूला इंटीग्रेशन m/dx y कांस्टेंट एंड जो आगे टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy and equals to c, so this is solution, okay। वैल्यू क्या आया यहाँ पर x 10/7 - 5/7, 10/7 - 5/7 - 4/7 - 12/7 c, okay। और सिंपलीफाई करना चाहे कर सकते हैं, उतना जरूरत नहीं है, देखो क्या होता है सिंपलीफाई करने के लिए ना, ये 5 है, ये 4 है, एलसीएम ले लो, इधर 4 का इंटू हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 7 दोनों से निकल के उधर ले जाओ, इधर 20/7 c, उसको न्यू कांस्टेंट कर दो, बट दिस इज आल्सो आंसर, ओके। सो ये हो गया एग्जैक्टनेस, एग्जैक्ट में बहुत सारा मेथड था, है ना। सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, लीनियर इक्वेशन, जो वेरी वेरी सिंपल, यू नो अबाउट इट, पता है ना सबको, इसको लेबनिट्ज लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। हेलो, यस सर, क्या फॉर्मेट होता है Yes, sir. तुम ही लोग बता दो। इसको देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा सा 12th क्लास का है, जरूर है ना। सो इसमें भी IF होता है, IF यू नो, e टू द पावर इंटीग्रेशन pdx और e टू द पावर इंटीग्रेशन pdy, दो फॉर्मेट में लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं। इट इज आल्सो एग्जैक्ट, ये एग्जैक्टनेस बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन मींस व्हाट, लेबनिट्ज लीनियर इक्वेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना है, क्या होना है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy अपॉन dx, यही डेरिवेटिव होना है फंक्शन के लिए। एंड लीनियर मींस डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, ये मल्टीप्लिकेशन में कभी नहीं होना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये नहीं होना चाहिए, y में और इसमें हायर पावर नहीं होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, और ये दोनों मल्टीप्लाइड में भी नहीं होना चाहिए। That is called linear equation. Linear equation means linear differential equation of first order and first degree means and differential equation containing only first order, first degree derivative of dependent variable and not any terms with higher power of y, that is dependent variable, than 1 and multiplied dependent variable and derivatives, ये सब नहीं होना चाहिए, तो उसको लीनियर बोलते हैं। ओके, लीनियर मींस पावर 1 होना चाहिए और इनका मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। सो इसको क्या लिख सकते हैं, dy/dx हो सकता है और y भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। बाकी जगह पे क्या होना चाहिए, उस y के साथ dy/dx नहीं आएगा, x आ सकता है, x का एनी फंक्शन, इसके साथ भी x भी आ सकता है। ओके, और राइट साइड में और भी कुछ कांस्टेंट की जगह पे x आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है। सो इसका जो फॉर्मेट बनाते हैं इस टाइप से, ऐसे याद है सबको। हेलो, ये फॉर्मेट, यस सर, और ये फॉर्मेट बन गया, और ये फॉर्मेट अगर नहीं है तो इसमें रिड्यूस भी हो जाता है। यहां पर अगर कुछ वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर कैसा, यहां पर y, यहां पर y, ये p एंड q,
P and Q किसका फंक्शन होता है? X and Y, where P and Q are functions of X only. क्यों? यही होता है ना, P और Q केवल X का फंक्शन है. So this is linear differential equation of first order and first degree. So इसका सॉल्यूशन बता दो मेरे को, क्या होता है सॉल्यूशन? हेलो सर, जब मालूम है तो क्या करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q IF dx प्लस कांस्टेंट. ये होता है ना सॉल्यूशन. इट्स सॉल्यूशन. ओके, अब जब यहां पर x लेते हैं, यहां y लेते हैं, यहां x आ जाता है, दोनों जगह x है और यहां y, और ये सब y का फंक्शन है, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर x आ जाता है और if की वैल्यू जो होता है e टू द पावर, यहां पर if की वैल्यू क्या है? वेयर if इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. ये होता है. अब जब इसको रिवर्स में लेते हैं, मींस व्हेन वी टेक x एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, सो dx by dy, यहां पर x, ये p and q y का फंक्शन हो जाता है. उस केस में यहां x ये y से रिलेटेड है, बाकी ये भी y से रिलेटेड है ना, और यहां पर dy. क्लियर है? तो ये नॉन है, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं. और ये एग्जैक्ट से कैसे बनता है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है. कौन सा इक्वेशन है? ये dy by dx. अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग इसको बोल रहे हैं, अब इसी से इंटू कर देते हैं दोनों तरफ, उसी IF से इसको इंटू करके देखते हैं एग्जैक्ट बनता है कि नहीं. dy by dx है, dy by dx हो गया. इसको किससे इंटू कर रहे हैं? इस इक्वेशन को IF से, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ये प्लस यहां भी इंटू होगा py e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल्स टू, राइट साइड में भी इंटू होगा q, राइट साइड में भी इंटू होगा q e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. ये बन जाएगा. अगर ये इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने क्या किया, अभी mds प्लस ndy के फॉर्म में नहीं लिखा, बट इस इक्वेशन को इंटू कर दिया किससे? IF, वही वाले इंटीग्रेशन से. सो दिस लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू बनता है, ये दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ, एक इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है y e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. ये इसका इंटीग्रेशन है. यू सी, यहां देख सकते हो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, फर्स्ट, बिकॉज डिफरेंशिएशन करना है. अभी जैसे डिफरेंशिएशन करते थे ना, उसी टाइप से ये लेफ्ट साइड में जब इससे मल्टीप्लाई होता है, तो लेफ्ट साइड जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है. लेफ्ट साइड एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनता है. तो लेफ्ट साइड अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनता है, तो यहां पर ये लेफ्ट साइड को ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज देखो इसका डिफरेंशिएशन होना है पहले, तो dy by dx ये डिफरेंशियल हुआ, बिकॉज फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज y है, और सेकंड का डिफरेंशिएशन करें. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसके डिफरेंशिएशन में ये रहेगा, साथ में इस जगह का भी डिफरेंशिएशन होना है. तो इसका अगर डिफरेंशिएशन हम करने जाएंगे तो क्या होना है? इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होना है, मींस e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. ये हो गया e फंक्शन का, और फिर इधर इतना फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन होगा, d और इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? p एंड y एज इट इज था. ये देखो, ये जो वैल्यू py दिस, सो ये लेफ्ट साइड डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाता है. और राइट साइड जो है, राइट साइड को d ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ q e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, वी कैन राइट लाइक दिस.
अभी बताया था ना उस दिन, किसी क्वांटिटी के सामने इंटीग्रेशन लगाओ और डिफरेंशिएशन लगाओ, ये खत्म हो जाएगा, यही बचेगा। सो ये भी डी ऑफ दिस हो गया। अब दोनों तरफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा y इंटीग्रल पी डी एक्स, इधर ही बन गया, इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ और d खत्म, ये बचा इक्वल्स टू वहां पर d और डिफरेंशिएशन, एक जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाया था इसमें, तो यहां पर भी इसको इंटीग्रेशन जैसी करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म, ये बचेगा इंटीग्रेशन q e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx dx और एक कांस्टेंट लगाते हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन। अब समझ में आया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला ये क्यों बना था? हेलो, एग्जैक्टनेस से ही तो हुआ है। वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, उससे मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया, राइट साइड को हमने डी ऑफ इंटीग्रेशन करके लिखा था, है ना, ऐसा लिख लिया। अब फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो ये बन गया, ये बन गया, मतलब यही तो है, फॉर्मूला बन गया। आईएफ है, आईएफ से तो बना फॉर्मूला। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, आल्सो नोन एज लेबनिट्ज लीनियर इक्वेशन। ओके, ये फॉर्मूला सबको याद है? हेलो, एक बार बताओ फिर। यस सर। अब दूसरा फॉर्मूला भी बन जाएगा ना इसका ऑपोजिट ऑर्डर में। ऑपोजिट ऑर्डर में मींस ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर x आता है, यहाँ पर y आता है और यहाँ पर y आता है, उसको किस ऑर्डर में लिखते हैं? dx अपॉन dy प्लस p1 x इक्वल्स टू q1। और जब ये फॉर्मेट में ट्रीट करेंगे मींस x को डिपेंडेंट बनाएंगे, x को ऊपर रखेंगे, तो यहां पर x है, यहां पर x है, ये p1 q1 किसका फंक्शन होगा? y का। यहां पर जो है p1 q1 फंक्शन किसका होना है? y का। उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला में बनेगा यहां पर x if और यहां पर y और यहां पर बन जाएगा y बिकॉज p1 q1 where p1 और q1 फंक्शन ऑफ y। ये भी वेल नोन है ना, क्यों सबको पता है ना ये भी? हेलो, यस सर। ये भी मालूम है ना सबको? Yes, sir. लीनियर इक्वेशन का वो दूसरा वाला टेक्निक है, dy बाई dx को के लिए जो फॉर्मूला होता है ds बाई dy करो तो दूसरा टाइप का मिलता है। दिस इज द लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ओके, सो कई क्वेश्चन किए भी होंगे 12th क्लास में, बट अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व। बट इसके साथ साथ एक इक्वेशन दिया है, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन, व्हाट इज बर्नौली इक्वेशन? आई थिंक बर्नौली इक्वेशन के बारे में नहीं मालूम। बर्नौली इक्वेशन इज दैट किसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ओके, सो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा मींस जैसे अभी हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे ना, एग्जैक्ट नहीं था तो एग्जैक्ट बना रहे थे। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना बिल्कुल इजी रहता है, आईएफ डायरेक्ट निकलता है पी देख के और डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन मींस अगर लीनियर नहीं है तो वी कैन कन्वर्ट इट टू लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। किसी ना किसी सब्स्टिट्यूशन से कोई ना कोई इक्वेशन क्या बन सकता है? लीनियर बन सकता है ना। सो हियर बर्नौली इक्वेशन को देख लेते हैं पहले क्या है, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ये तो पहले वाला टॉपिक था ना, इसलिए मैं इसको भी पहले बता लेता हूँ। क्या लिखा है बताओ, अभी इक्वेशन का नाम क्या लिखा है? हेलो, कोई ना कोई बताओ। हेलो, बर्नौली इक्वेशन। कुछ डिफरेंस है? देखो ये लिखा हूं बर्नौली इक्वेशन है, इट इज बर्नौली इक्वेशन। वेयर लीनियर से इसमें क्या डिफरेंस है? वेयर p एंड q आर functions of x only. What is the difference between linear equation and this? It's इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है? कहां पर डिफरेंस दिख रहा है? हेलो, किस जगह पर डिफरेंस दिख रहा है? हेलो,
पहले बोलो तो फिर आगे बढ़े। सर y पावर n एक्स्ट्रा है। हाँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा है ना y पावर n। अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन मिल जाए हमको, इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन मिल जाए तो उसको बोलेंगे बर्नौली इक्वेशन। क्लियर है? रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये रिड्यूस हो सकता है किसमें? लीनियर इक्वेशन में बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है, इसमें जो वेरिएबल रहता है ना, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं तो वो वेरिएबल हट के वो वाला वेरिएबल आ जाता है, फिर न्यू वेरिएबल और जो पुराना एक वेरिएबल और है, उन दोनों में इक्वेशन बनता है फिर। सो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इट इज नोन एज बर्नौली इक्वेशन। ओके, और ये बर्नौली इक्वेशन है तो इसको कन्वर्ट किस में करेंगे हम? लीनियर इक्वेशन में। इस फॉर्मेट में, फॉर्मेट इज मेन, फॉर्मेट में दिख गया ना, तो इसकी जो जगह पे इसको सपोज कर लेते हैं z। क्लियर है? इसको z सपोज करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इससे डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन, इस वाले टर्म से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है, उसके बाद ही यहाँ वाले क्वांटिटी को z सपोज करना है, मींस न्यू वेरिएबल सपोज करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले क्वांटिटी से डिवाइड करना है। सो डिवाइड कर ले, यहाँ पर y टू द पावर n से डिवाइड करें इसको, क्या करें, क्या आएगा? इसके नीचे भी आएगा y टू द पावर n, इसके नीचे भी आएगा y टू द पावर n, सो y टू द पावर माइनस n वी कैन राइट dy अपॉन dx प्लस p, y पावर 1 है और डिवाइड होगा y पावर n से, सो क्या हो जाएगा? y पावर 1 माइनस n एंड इक्वल्स टू q। ये क्या किया हमने? डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय y टू द पावर n, और इक्वल से मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय y 1 अपॉन y टू द पावर n। इसने डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के बाद ये जो p की जगह पे ये जो लिखा हुआ है, ये वाला वैल्यू p के साथ जो वैल्यू बनता है, इस पूरे को क्या सपोज करना है? न्यू वेरिएबल, कुछ भी लिख सकते हैं, z w वगैरह कुछ भी। ओके, नाउ p के साथ का क्वांटिटी को लिखना है y पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू z। सपोज न्यू वेरिएबल में इंट्रोड्यूस, ये सब्स्टिट्यूशन है, इसके जगह पे हमने क्या लिखा? z लिखा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या होता है। ये अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो ये 1 माइनस n इंटू क्या होगा यहाँ पर? y टू द पावर दिस 1 माइनस n माइनस 1, सो y टू द माइनस n। अब डिफरेंशिएशन अगर आता है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन? x के रेस्पेक्ट में, y इज डिपेंडिंग ऑन x, सो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मेरे को बताओ? राइट साइड dz बाय dx आएगा। क्या होना चाहिए यहाँ पर? इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, सो यहाँ पर क्या होगा? dy बाई dx, यहाँ पर आना है dy अपॉन dx। ये अब ये जो क्वांटिटी दिख रहा है इतना, इसको छोड़ दो, इसको नहीं रखना। ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर है, देखो यहाँ पर, तो इसकी जो वैल्यू आएगा ना यहाँ पर, वो वैल्यू को यहाँ पर रखना है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर y टू द पावर माइनस n dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस n dz बाई dx। ये जो वैल्यू आया ना, इसके जगह इस वैल्यू को यहाँ रखना है। सो वी गेट, क्या होगा? इसके जगह पे ये रखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस n dz बाई dx प्लस p, यहां पर रखेंगे कौन? z, p z इक्वल्स टू राइट साइड q। ये जो है ये लीनियर इक्वेशन बन गया। इसमें क्या हुआ? y खत्म, y की जगह कौन आ गया? z, dz बाई dx, यहाँ z है, यहाँ z है, यहाँ p है, ये q है। वो p q क्या था? x का ही फंक्शन है, x का फंक्शन है। बट ये एक चीज जो क्वांटिटी दिख रहा है, इसको उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा? ये dz बाई dx इक्वल्स टू ये 1 माइनस n इंटू p एंड 1 माइनस n इंटू q।
ये 1 माइनस एन तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू p के साथ मिला, ये न्यू p है और ये न्यू q है, ये जो टोटल ये p है और ये q है, ये तो कांस्टेंट है, सो ये p x का फंक्शन है तो x का ही फंक्शन रहेगा, q भी x का फंक्शन है, सो दिस इज न्यू फंक्शन p q x का फंक्शन है और ये नीचे x है, तो यहाँ z है यहाँ z है, लीनियर इक्वेशन व्हिच इज लीनियर, which is linear differential equation of first order and first degree. This is well known equation ना, इसका सॉल्यूशन हमको पता है, वही अभी जो कर रहे थे, क्या होगा e to the power इंटीग्रेशन p dx if हो गया, फिर सॉल्यूशन डायरेक्ट यू कैन राइट, सो बर्नौली इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। Here remember ये y to the power n है, यहाँ cos y भी हो सकता है, sin y भी हो सकता है, कुछ ऐसा क्वांटिटी हो सकता है जिससे डिवाइड करो और ये जो p के साथ जो कोफिशिएंट बनेगा उसको अगर न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करें और डिफरेंशिएशन करने के बाद यही मिल जाए इधर जो है, तो उस सब्स्टिट्यूशन से ये लीनियर में कन्वर्ट होता है और लीनियर का सॉल्यूशन लिखना इजी है एकदम, ओके। और इसमें जनरल फॉर्मेट, ये जो बर्नौली इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट मींस अगर इस टाइप करें dy अपॉन dx प्लस p, यहां पर y होता है, y के जगह सपोज देयर इज गिवन ए फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू q एंड इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर है इस फॉर्मेट में, अगर दिस इज जनरल फॉर्म फॉर बर्नौली इक्वेशन, इस फॉर्मेट पे भी हो, यहां पर है क्या चीज मेन, dy by dx के साथ f dash y है, f dash y मींस जो p के साथ लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव है, उसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में यहां पर, ये जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव है यहां पर, और यहाँ p है यहाँ q है यहाँ y है यहाँ x है, दिस फॉर्मेट इज द जनरल फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन। इस केस में क्या करना है, एफ वाई को जेड ले लेना है और यही प्रोसेस करना है, सो यू कैन गेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया तो सॉल्व करना इजी है, बिकॉज सब लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले भी सॉल्व किए हो ना। सो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। अभी कौन कौन सा क्वेश्चन किए थे हम लोग, 7 8 ना, 9, क्वेश्चन 9। सो सी क्वेश्चन 9, कितना टाइम हुआ है अभी, 1 hour 15 minute हुआ अभी टाइम है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चंस फॉर, इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा है, किस क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये कन्वर्ट नहीं है, बर्नौली इक्वेशन है ये, बिकॉज लीनियर इक्वेशन यू नो, इसलिए ना मैं सीधा बर्नौली इक्वेशन पे जा रहा हूँ, कन्वर्ट होगा लीनियर में, लीनियर का सॉल्यूशन लिख देना है। यहाँ पर क्या करना चाहिए, हेलो, इस इक्वेशन में किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कि वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाए, देखो 1 hour 15 मिनट हुआ है, कोई थके नहीं हो, आराम से हैं, पढ़ो, अभी टेस्ट होने वाला है हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद, है ना। इस बार मैं भी टेस्ट में रिटर्न में ले लूं, बट ऑब्जेक्टिव भी ले सकता हूं और डिसाइड करेंगे बाद में। बस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या करना है बताओ, हेलो, रिप्लाई करो कोई ना कोई, इतने सारे लोगों में 1-2 लोग रिप्लाई करते हैं बस। हेलो, कुछ दिख रहा है, x की वैल्यू है, dy के साथ कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो इधर p के साथ लिखा हुआ है, q के साथ है, और किसी को कुछ सब्स्टिट्यूट करे तो कुछ मिले, कुछ बताओ इसमें क्या क्या कर सकते हैं। हेलो, हेलो, 20 लोग ज्वाइंट है, रिप्लाई करो। हेलो,
PQ फाइंड करें। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ अभी बर्नौली इक्वेशन डिस्कस किया, बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड कुछ समझ में आ रहा है? मैंने कुछ बताया था इसमें। अब देखो यहाँ पर जो है dy बाई डी एक्स है और जो फंक्शन p बनेगा पहले तो x 3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सो जो इधर p बनेगा उसके साथ y का कुछ टर्म है क्या? क्या है y का टर्म? dy बाई डी एक्स सेकेंड टर्म में y का क्या टर्म है? हाँ हेलो, 3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 1 y क्यूब इक्वल्स टू, फिर क्या लिखा है ax क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसके, ये अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता के आया कि ये जो x का फंक्शन है, यहाँ भी x का फंक्शन है, ये भी x से रिलेटेड है, इस पूरे से डिवाइड कर दो पहले, और डिवाइड करने के बाद भी दिख रहा है ना यहाँ पर, और इससे मत करो, केवल x वाले पार्ट से करो डिवाइड। सो क्या बन जाएगा ये dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर y क्यूब इक्वल्स टू ax क्यूब अपॉन 3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ, ये वाले क्वांटिटी से डिवाइड किया। अब ये p है, ये q है। सो जो क्वेश्चन बताया था यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, तो इसको क्या करते थे अभी बताया था ना। इसको z ले लो ना, इसको इसका डेरिवेटिव भी तो है ये y स्क्वायर। सो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या बनेगा, इसको हमने क्या सपोज कर रहा हूं, इसको z ले रहा हूं, इसको z लेंगे तो क्या होगा 3y स्क्वायर, 3 यहां पर 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन dz बाई dx। ये अगर इसको z लेंगे ये मिलेगा, तो इसको ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पुट दिस, देन क्या हो जाएगा ये अभी y स्क्वायर dy बाई dx, y स्क्वायर dy बाई dx, इसके प्लस पे रखना है 1/3 dz बाई dx, 1/3 dz बाई dx, इस जगह पे ये आ गया, प्लस p, इसको p लिख दिया हमने, इसको p, और इसको लिख दिया y क्यू की जगह z, और उसको हमने q लिख दिया, वेयर राइट p इक्वल्स टू, p क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड q इक्वल्स टू ax क्यू अपॉन 3x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये p q ये है ना, वेल p एंड q, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, हेलो, इसको PQ में ना यहाँ पर एक वो करते हैं अभी, ये 1/3 है ना, 1/3 यहाँ पर है। सो इस 3 से डिवाइड भी कर लेते हैं साथ साथ, है ना। सो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 3 हट जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो p बनने वाला है ये, तो डायरेक्ट लिख दिया, थोड़ा सा एक स्टेप और लिखना था, 1/3 आया ना यहाँ पर, ये 3, या 3 को नहीं लेते तो भी चल जाता, 3 उधर नहीं आता, दैट मीन्स इसको हटाता हूँ तो ये बन जाएगा ना, ये जो 1/3 था ना यहाँ पर 1/3 3y स्क्वायर, अगर 3 को यही रख देते, 3 से ना डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डिवाइड नहीं करते थे उससे, ठीक है। तो लिखने में इजी हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या था 3, केवल डिवाइड हमने किससे किया, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, या 3y स्क्वायर ही रख दिया,
ओके, जब डिवाइड किया था, बिकॉज वही आना है ना, टोटल वैल्यू आना है वही 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स। सो 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स dz बाई dx लिख दिया, और p है वो q है। सो p q इज दिस, यहाँ पर 3 होगा। ओके, which is linear, which is linear. You can write also Leibniz linear equation. So clear हो जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, which is Leibniz linear equation. Therefore, IF integration factor e to the power integration of p dx, that is e to the power integration of 2x square minus 1 upon x 1 minus x square dx. अब यहां पर इस क्वेश्चन में तो लॉन्ग इसलिए हो जा रहा है, p की वैल्यू ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इस इंटीग्रेशन को अलग से थिंक करें कि ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इसको मैं अभी डायरेक्ट लिखने वाला हूं। बताओ इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, ये वाला इंटीग्रेशन सिंपल वैल्यू नहीं है, करके अभी सोचना पड़ रहा है कि इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें। ओके, ये स्टेप समझ में आया ना सबको। ये क्वेश्चन गिवन था, यहाँ y क्यू था, इसको z लेना था, y स्क्वायर यहाँ पर है, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि 3y स्क्वायर होता है तो 3 को भी नहीं हटाया, केवल इतने से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ ना। इसको z लिया, डिफरेंशिएट किया, इसके जगह पे ये लिख दिया, और इसको इस फॉर्मेट में आ गया, लीनियर हो गया, लीनियर हो गया तो IF हो गया। IF भी इंटीग्रेशन pdx है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, सो इंटीग्रेशन pdx, p x का फंक्शन है ये है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा स्टेप आएगा बताओ? हेलो सर 2x स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे, x स्क्वायर। हाँ, मेथड कौन सा है? इंटीग्रेशन का मेथड, इंटीग्रेशन का मेथड। सॉल्यूशन तो सबको पता है क्या लिखना है, इंटीग्रेशन का मेथड क्या होगा, मतलब क्या अभी करना है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बिकॉज टाइम लगना है, बिकॉज ये IF निकालने के लिए ये इंटीग्रेशन करना है ना हमको। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x 1 माइनस x स्क्वायर dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या होगा ये पूछ रहा हूँ। वो p है वो q है, हमको जरूरत पड़ेगा q को लिखा रहने देता हूँ, p को हटाता हूँ। इंटीग्रेशन करना है ना, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए मेथड कौन सा यूज करेंगे? रैशनल फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा ना। हेलो, यस सर। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ये देखो 2 डिग्री का है, यहाँ 3 डिग्री का है, यहाँ 3 डिग्री का है, x 1 माइनस x स्क्वायर। ये अगर ऐसे करते हैं ना, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x 1 माइनस x 1 प्लस x इक्वल्स टू a अपॉन समथिंग, b अपॉन समथिंग, c अपॉन समथिंग करते हैं और सॉल्व करते हैं, abc निकालते हैं और वैल्यू लिख देते हैं, एक्सप्रेशन आ जाता है। सो यहाँ पर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेशन करके फिर यहाँ पर रखना पड़ेगा e के पावर में। सो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना, सो पार्शियल फ्रैक्शन ही करना है, जस्ट राइट इट। पार्शियल फ्रैक्शन आता है सबको? हेलो, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मैंने क्या लिखा समझ में है? हेलो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। 3rd डिग्री का है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 प्लस x 1 माइनस x 1 प्लस x 1 माइनस x, 3 फैक्टर्स आर देयर, तो a बाय दिस फैक्टर, b बाय दिस फैक्टर, ऐसा आएगा ना, x आएगा 1 प्लस x आएगा 1 माइनस x आएगा, और abc की वैल्यू निकालना है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा। So after doing partial fraction, we can get just minus 1 by x plus 1 by 2, 1 by 1 plus x minus 1 by 2. Here minus sign is there. Plus 1 upon 1 minus x. ये वैल्यू आया। हेलो, ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट,
रफ में इसको पार्शियली ब्रेक कर लेना है। जो मैं मेथड बताया था एबीसीडी करके वो करते हैं ना, उसी से ब्रेक से इसका पार्शियल फ्रैक्शन का ब्रेकिंग है ये। अब इंटीग्रेशन बताओ क्या होना है, ये ना प्लस हाफ 1 माइनस एक्स माइनस हाफ। ओके, टेल मी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन बोलो क्या होना है इंटीग्रेशन। हेलो हेलो, इंटीग्रेशन बताओ। भाई इतने सारे लोग हो। हेलो सर e to the power minus log x minus 1 by 2 log 1 plus x minus 1 by 2 log 1 minus x। इसको मत बोलो, यहाँ पर बोलो पहले इंटीग्रेशन। पहला वाला क्या होगा माइनस लॉग एक्स ना, दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा Yes, sir. माइनस 1 minus प्लस 1 by 2 log 1 plus x। 1 plus x. अब ये बताओ क्या आने वाला है यहाँ पर, अब क्या लिखूं। सीरियसली थोड़ा पढ़ने के लिए सोचना है ना, कहीं भी बैठे रहे तो कुछ कर रहे हो। अभी देखो इस लाइन पे लाया, अब इसकी वैल्यू ये ब्रेकिंग करना था, ब्रेकिंग हमने अभी कर नहीं रहा क्योंकि टाइम लगता है। अभी बता भी दिया कैसे ब्रेकिंग होता है, वो ब्रेकिंग कर लो, रफ में लिखो, ब्रेकिंग करो, ये लगाया ये लगाया। अब यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस होगा, लॉग 1 माइनस एक्स लिखूंगा सर माइनस होगा यहाँ पर, बिकॉज उस वहां से एक माइनस आएगा ना यहाँ पर, यही ना माइनस आएगा ना। ये माइनस किस लिए आया, हेलो बताओ माइनस किस लिए आया। Sir, 1 minus x को differentiate. हाँ 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन में लीनियर फैक्टर के x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, तो -1 से डिवाइड हुआ तो माइनस आ गया। सब में माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, और ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, वो भी लॉग है, सब में लॉग है। ये जो 1/2 है लॉग की, इसमें पावर में जाता है, रूट हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, वो भी रूट हो जाएगा, और ये पूरा माइनस कॉमन आ गया, बाहर आ गया, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, लॉग ए बी सी। सो क्या हो जाएगा ये लॉग एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ये होना है कि नहीं होना है, क्योंकि x का इंटू होना है 1 प्लस एक्स के रूट से, रूट ओवर 1 माइनस एक्स। ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का दोनों को मिला दिया, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब इस इंटीग्रेशन को यहाँ यूज कर लेते हैं, e टू द पावर माइनस लॉग ऑफ x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट 1 अपॉन x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बताओ आई एफ इक्वल्स टू ये होगा कि नहीं, आई एफ हुआ, हेलो यस सर। आई एफ अगर ये हो गया, सॉल्यूशन लिखो अभी, क्या कैसे सॉल्यूशन लिखा जाता है। सो द solution is given by dy by dx में था, सो y नॉट z में था, सो z इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल z था, z इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ dx प्लस c। यही है ना फॉर्मूला, लीनियर का फॉर्मूला यही है ना। अब ये z है, z के साथ आई एफ लिखो, आई एफ क्या है 1 अपॉन एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू वो जो लिखा हुआ है ए एक्स क्यूब अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड आई एफ की वैल्यू ये 1 अपॉन एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx प्लस c। बस ये हो गया, सॉल्यूशन लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इस इंटीग्रेशन को भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा। एंड सब लोग पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे को बताओ ये क्या होगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। लेफ्ट साइड तो क्लियर है, z अपॉन एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो x है, एक्स स्क्वायर है, एक x बचेगा, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर
-3/2 ये हो गया। ए को बाहर कर देना, ए को बाहर कर देना है, इंटीग्रेशन ये होना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, एक एक्स और बचा इसमें, यहाँ पर एक एक्स बचा, dx बचा। इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? यही इंटीग्रेशन बचा है ना इसमें, -3/2 x dx प्लस सी। मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखने वाला हूं, क्या होगा बताओ? इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा? t। इसको रफ में ही करना है, साइड में। इसकी वैल्यू क्या होना है? 1 - x² t लोगे तो -2x dx dt, और इसमें x dx dt dt/2 x dx है, x dx को -dt/2 लिखना है, तो -12 आ गया, -12 t पावर -3/2, सो -12 -a/2 -12 आ गया, ये तो बाहर आ गया, -1/2 बाहर आ गया, dt अंदर है, यहाँ पर dt रहेगा, यहाँ पर t पावर -3/2, t पावर -3/2 मीन्स t पावर -3/2 प्लस 1/-3/2 प्लस 1, सो क्या होगा ऊपर? t पावर -12, t पावर -12 मीन्स फाइनली क्या हो रहा है? हेलो, 1 - x² -12 अपॉन -12, ये होना है कि नहीं होना है? t पावर -12 अपॉन -12, और -1/2 इधर आ गया था, ये हो गया, t मीन्स 1 - x², ये हो गया, -12 खत्म। सो फाइनली आंसर क्या आ गया बताओ? अब देखो आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये है ना, माइनस प्लस 2 खत्म, ये बचा, वो 80 बचा, और यहाँ पर ये नीचे क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को उधर ले जाते हैं, इनटू कर देते हैं, तो क्या होगा? सॉल्यूशन क्या लिखो बताओ? z इक्वल्स टू, ये वाला इसमें इंटू हो रहा है जाके, सो ax, इसका इसमें इंटू हो रहा है, ये तो सब खत्म हो गया, ये बार बचा, ये के साथ x का इंटू, ये +12 है, या -12 है, खत्म हो गया, प्लस क्या लिखना है यहां पर अभी? हेलो, cx √1 - x², ये सिंपल आंसर है। ओके, यही है सॉल्यूशन, ax + cx दिस। ओके, नाउ हाँ, यहाँ पर z है ना, z की वैल्यू क्या था? z को क्या लिए थे हम लोग? y³, सो उसको भी कन्वर्ट लाना पड़ेगा, cx √1 - x²। सो लीनियर इक्वेशन पढ़े जरूर है, बट लीनियर इक्वेशन ही तो यूज किया लास्ट में ना, कन्वर्टिंग, आफ्टर कन्वर्टिंग। सो बर्नौली इक्वेशन ही था, ये कन्वर्ट करके हमने इसको क्या बनाया था? लीनियर बना के सॉल्व किया। ओके, सो सिंपल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सबसे बनना चाहिए, है ना? 1 घंटे में थक जाते हैं तो कैसे होगा बताओ? हेलो, क्या टाइम हुआ अभी? 1:39। क्या करूं बताओ? अभी पढ़ाऊं आगे कि नहीं? पढ़ाओ सर। कौन बोले? अनीश, दिलेश सर? कौन? खिलेश ना? हाँ, खिलेश, अनीश, यही लोग बात करते हैं, बाकी कोई करते नहीं है। देखो अगस्त में अगर कॉलेज खुलेगा तो फिर कॉलेज में मिलेंगे, है ना? ऐसा उम्मीद है। यस सर। अब क्या होगा देखते हैं। यस सर। क्या होगा देखते हैं। तुम्हारे जो जितने सीनियर है ना, 2-3 बैच मैकेनिकल को मैं ही पढ़ाता था, है ना? थर्ड सेम तक क्लास रहता है ना? तो अभी क्लास ले हैं ना, बाकी तो कोई बात करते नहीं है। अब कितने लोगों से बात करें, किसी ना किसी से रिप्लाई आना चाहिए ना, कैसे होता है, क्या होता है ना? ओके, सो क्वेश्चन 9 हो गया। ये बर्नौली इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, यू नो, also बर्नौली इक्वेशन। क्वेश्चन 10 टेक इट। ओके, इसमें बस मेरे को बता दो क्या करना है। ये भी बहुत इजी है, बहुत जल्दी होगा। अब क्वेश्चन सब इजी रहता है,
बस टेक्निक पता होना चाहिए क्या करना है ना। इस क्वेश्चन में क्या करना है बताओ, ये भी ग्रेवाल का है बट इंपॉर्टेंट है, कई बुकों में है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, टेल मी। 2:05 में स्टार्ट किया था कम से कम, चलो अभी ये क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, उसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक में फिर 1 घंटा लगना है, अभी इतना जल्दी नहीं होगा। सो टेस्ट के पहले तो हो ही जाएगा। 3 दिन तो लगना है इस यूनिट को, ऐसा नहीं कि 2 दिन में खत्म कर दे, है ना। सो बताओ, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जल्दी सॉल्व होगा, बहुत जल्दी। क्या करना है, dy/dx प्लस x sin 2y इक्वल्स टू x क्यूब cos स्क्वायर y। थोड़ा फील करो ना जो मैंने बताया था, बर्नौली इक्वेशन, ये लीनियर नहीं है बट लीनियर में कन्वर्ट कर सकते है ना। सो क्या होगा, क्या करना चाहिए, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो dy/dx, सी हियर dy/dx रहता है और यहां पर जो टर्म रहता है, इधर इधर जो टर्म रहता है, यहां पर जो रहता है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें सो ये मिल जाए, यहां वाले क्वांटिटी मिल जाए। सो यहां पर अगर x के साथ कुछ क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी से तो पहले डिवाइड करना है पूरे इक्वेशन, उस क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद देखो इस क्वेश्चन में यहां पर x के अलावा कौन सा क्वांटिटी है, टेल मी। इस इक्वेशन में राइट साइड में x क्यूब के साथ क्या है, cos square y। cos स्क्वायर y से डिवाइड करो तो इधर dy/dx यहां पर क्या बनेगा, यहां पर sec square y बन जाएगा। sec स्क्वायर, यहां sec स्क्वायर y बनेगा और dy ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब sec स्क्वायर y आने का मतलब यहां क्या होना चाहिए, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं तो यहां से तो हटा दिया y को, फिर यहां पर जो आया क्वांटिटी, उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव ये होना चाहिए। sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, sec स्क्वायर 10 का, यहाँ 10 आ रहा है क्या, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, sin 2y है और डिवाइड हो रहा है cos स्क्वायर y से। अब ये 10 बनेगा कि नहीं, बन जाएगा ना, 2 sin y cos y, cos कैंसिल, sin by cos 10y तो आ गया, 10y को हम क्या ले लेंगे, z, तो यह sec स्क्वायर y dy/dx, ये इसके जगह क्या आ जाएगा, dz/dx आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो जल्दी जल्दी लिख देते हैं ना, ये 5-4 लाइन है, ज्यादा नहीं है इसमें। सो क्या करना है, क्वेश्चन में सीधा लिख देना है, डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय cos स्क्वायर y, यही कर रहे हैं यहां पर। ओके, सो डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय cos स्क्वायर y, देन क्या हो जाएगा वहां पर, sec स्क्वायर y dy/dx प्लस x sin 2y। सो x sin 2y बार बार लिखना पड़ता है ना, तो sin 2y को सीधा डायरेक्ट यहीं पर ही लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, 2x sin y cos y अपॉन cos स्क्वायर y इक्वल्स टू x क्यूब हो जाएगा। ओके, सो ये क्या बन गया अभी, sec स्क्वायर y dy/dx प्लस 2x 10y इक्वल्स टू x क्यूब। अब क्या करना पड़ेगा यहां पर, हेलो, put 10y equals to z implies sec square y dy/dx equals to dz/dx, ये हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने से ये क्या बन जाएगा, dz/dx, इस जगह पे dz/dx प्लस 2x 10y के जगह पे z इक्वल्स टू x cube, which is linear equation, Leibniz linear equation. So integration factor equals to e to the power integration of p dx
इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx e टू द पावर x स्क्वायर। क्लियर हुआ? हेलो, e टू द पावर x स्क्वायर ही आएगा ना if? Yes, sir. सो इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एकदम इजी है, इसका सॉल्यूशन लिखना है, इसका सॉल्यूशन। सो इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या लिखते हैं, z है यहां पर, तो z इंटू if इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू q के प्लस पे x क्यू, सो क्यू नहीं लिखता, सीधा एक्स क्यू लिख देता हूं, है ना, एक्स क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। बस अब इसको सॉल्व कर देना है ना। फाइनल आंसर क्या होना है, आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, सो इम्प्लाइज जेड ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू of integration of x square e to the power x square dx plus c। अब तुम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट बताओ मेरे को क्या सॉल्यूशन होना है यहाँ पर, क्या x cube यहाँ पर x क्यूब है ना, ये x क्यूब है, सो इंटीग्रेशन कैसे करें, एक स्क्वायर यहाँ रखें, यहाँ x स्क्वायर करें, x dx करें प्लस c करें तो हो जाएगा ना इंटीग्रेशन। x क्यूब है तो यहाँ 2 टाइम्स रखा, यहाँ 1 टाइम्स रखा। अब x स्क्वायर को क्या ले ले, t, टेकिंग x स्क्वायर इक्वल्स टू t, सो x dx इक्वल्स टू हाफ dt, है ना, तो x dx इक्वल्स टू हाफ dt, सो x dx इस जगह हाफ dt आएगा, हाफ dt आएगा मतलब हाफ बाहर हो गया, और ये t है, ये e टू द पावर t है, ये t है, ये e टू द पावर t है, ठीक है, ये t है e टू द पावर t, और ये है dt बाई 2, तो 1/2 बाहर, ये dt। अभी बताया था इसका इंटीग्रेशन सीधा लिखना है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन बाई पार्ट्स लगाओगे, बाई पार्ट्स से क्या हो जाएगा, वही e टू द पावर t t माइनस 1, सो हाफ e टू द पावर t माइनस 1 प्लस c, प्लस सी भी तो है ना, हाफ ई टू द पावर टी माइनस 1 प्लस सी, और वैल्यू रख देना है, हाफ ई टू द पावर टी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आया z ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। सो फाइनल सॉल्यूशन, अब देखो ट्रांसफर करके लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, z इक्वल्स टू भी तो लिखना है ना, सो z इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह से खत्म, c के साथ जाके ऐड हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, z इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर एक्स स्क्वायर इधर है, यहाँ भी है, वहां नहीं है, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, वहां पर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और this is equals to z, and z equals to what, 10y। so final solution, z के प्लस पे वैल्यू रख देना है ना y के फॉर्म में, z implies 10y equals to half x square minus 1 plus c e to the power minus x square। ओके, ये सॉल्यूशन है ना, हाफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c टू द पावर माइनस x स्क्वायर y 10y इक्वल्स टू, क्लियर। ये बस सॉल्यूशन लिखना है डायरेक्ट, बाद में ये z की वैल्यू को रिवर्ट किया ना, सिंस z इक्वल्स टू 10y इक्वल्स टू z, 10y इक्वल्स टू z। सो क्लियर हुआ, लीनियर इक्वेशन तो पता है कैसे सॉल्व करते हैं, अगर डायरेक्ट सेटिंग हो गया तो लीनियर इक्वेशन ही क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन में पहले उसको लीनियर बनाते हैं और फिर लीनियर को जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करके वैल्यू निकाल लेते हैं, आईएफ निकाल लेना पड़ता है। ओके, सो बर्नौली इक्वेशन क्लियर है, हेलो, यस सर। तो अभी आज क्लोज करते हैं ना, अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी इसी टाइप का ही, इससे थोड़ा हटकर है, वो हायर डिग्री का है, बट वो भी सिंपल है ना, एक क्लास और लगेगा फिर ये यूनिट कंप्लीट होगा, बिकॉज ये टाइम लगता है ना थोड़ा सा सॉल्व करने जाओ, समझाने जाओ तो। ओके, सो क्लोज करें मीटिंग, है ना।
Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.